کیا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کے پاور سیکٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ Here is one answer. مارچ 2022 میں ایک دن کی ایوریج الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کچھ یوں دکھتی تھی. صبح 5 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک الیکٹریسٹی کنزمپشن گرمی، انڈسٹریل لوڈ، کمرشل لوڈ اور دیگر وجوہات کی وجہ سے گریجولی بڑھتی تھی اور رات کے ٹائم قدرتاً کم ہو جاتی تھی. مگر مارچ 2026 کی ایوریج ڈیمانڈ بہت ڈفرنٹ ہے. اب پیک رات کے ٹائم نظر آتی ہے اور دن کے ٹائم گریڈ پر ڈیمانڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اسکرین پر نظر آنے والے کرو کو ہم ڈک کرو کہتے ہیں اور اس بطخ کے پیٹ میں پاکستان کے انرجی سیکٹر کی اصل شکل چھپی ہوئی ہے. اس رپورٹ میں ہم اس ڈک کرو کو غور سے سمجھیں گے. اس میں سولر کے کردار کو اینالائز کریں گے اور بجلی کی قیمتوں پر اس کے اثر کا جائزہ لیں گے. ویلکم ٹو پاور پلے فار اپریل 2026. جیسے کہ ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، نیشنل گرڈ کی انسٹیبلٹی پاکستان کی انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے ایک خاصا بڑا چیلنج ہے. اگر آپ ایک انڈسٹریل کنزیومر ہیں اور نیشنل گرڈ کے مسائل سے مکمل نجات پانا چاہتے ہیں تو ریون کے گرڈ کنڈیشننگ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم ریفلیکس کا انتخاب کریں. اسٹک ٹل لیٹر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ریفلیکس آپ کی انرجی کو کیسے آپٹیمائز کرتا ہے. اس چیلنج کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپریل کے جنریشن نمبرز پر غور دینا ہوگا. اپریل 2026 میں پاکستان نے 9498 گیگا واٹ آور جنریٹ کیے، جو مارچ 2026 کی 8939 گیگا واٹ آور کی جنریشن سے 6.3% زیادہ تھا اور پچھلے سال اپریل کی 10513 گیگا واٹ آور کی جنریشن سے 9.6% کم تھا. کل ملا کے اس فسکل ایئر کے پہلے 10 مہینوں میں پاکستان نے 1,02,628 گیگا واٹ آور بجلی جنریٹ کی، جو پچھلے سال کے پہلے 10 مہینوں سے 2% زیادہ ہے. اپریل 2026 کے ایئر آن ایئر ڈراپ کی سب سے بڑی وجہ RLNG جنریشن میں کمی تھی. RLNG کا تو وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جو گلوبل کرائسس کی وجہ سے ہمارے پاس RLNG کی سپلائیز جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ کٹ آف ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے امپیکٹ آنا ہی تھا. اس سال کی 380 گیگا واٹ اور RLNG جنریشن اپریل 2025 کے 2157 گیگا واٹ آور کے مقابلے میں 82.3% کم تھی. ہائیڈل جنریشن بھی ایئر آن ایئر 9.8% کم تھی. ان کے برعکس سب سے بڑا جمپ نیوکلیئر کی جنریشن میں نظر آتا ہے، جس کی 2097 گیگا واٹ آور کی جنریشن پچھلے سال کے مقابلے میں 11.4% زیادہ تھی. پر یونٹ کاسٹ دیکھیں تو اپریل 2026 کی 9.9 روپیز پر کلو واٹ آور اپریل 2025 کی 8.9 روپیز پر کلو واٹ آور سے 11.5% زیادہ تھی. برنرس آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اگر وہ 28.7 تھا تو اب اس دفعہ جو ہے وہ 45.3، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری جنریشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن پرائسز جو ہے نا وہ پر یونٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. اب آئیے پاکستان کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ پر غور کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، ہماری الیکٹریسٹی ڈیمانڈ سیزنز کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. سمر کی پیک ڈیمانڈ تقریباً 30,000 میگا واٹ کے قریب ہے، جبکہ ونٹر کی پیک ڈیمانڈ 12,000 میگا واٹ ہے، یعنی دونوں میں لگ بھگ 18,000 میگا واٹ کا فرق ہے. سیکنڈلی، پاکستان کی ٹوٹل اینول الیکٹریسٹی کنزمپشن جو فسکل ایئر 2017 میں 95 ٹیرا واٹ آور تھی، فسکل ایئر 2025 میں 162 ٹیرا واٹ آور تک پہنچ گئی ہے، یعنی پاکستان کی الیکٹریسٹی کنزمپشن پچھلے 8 سالوں میں 70% بڑھی ہے. اوور آل یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. جی ڈی پی کے ساتھ پازیٹیو کوریلیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ ہم نے دیکھا جب ہم آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس انرجی ڈیمانڈ بھی نہیں آئی. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری گروتھ نیشنل گریڈ پر نہیں ہوئی. انفیکٹ رینیویبلز فرسٹ کی رپورٹ کے مطابق نیشنل گریڈ کی ٹوٹل سیلز FY22 سے سالہ سال گر رہی ہے اور FY25 کے اینڈ تک 2022 کے مقابلے میں 11% کم تھی. اسی ٹائم میں ڈسٹریبیوٹڈ سولر میں 410% گروتھ نظر آئی ہے. There's a perception out there کہ آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ یا سیلز ڈراپ کر رہی ہے، بٹ
essentially वो सब्सिट्यूट हो रही हैं सोलर से। आज हमारी नेशनल ग्रिड की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 46 गीगावाट है और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की कैपेसिटी अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लें तो 38 गीगावाट तक आती है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 51 गीगावाट तक आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि आज सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या तो नेशनल ग्रिड की टोटल कैपेसिटी के बहुत करीब है या उसको ऑलरेडी सरपास कर चुकी है। विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम शुरू में दिखाए गए डक कर्व को पूरी तरह समझ सकते हैं। गर्मियों में सुबह 5 बजे तक सूरज निकल आता है और 10 बजे से पीक सोलर जनरेशन शुरू हो जाती है जो शाम के 4 बजे तक चलती रहती है। तो ये डक कर्व बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ने दिन के टाइम नेशनल ग्रिड की डिमांड बहुत कम कर दी है। जहां समर 2022 में मिड डे डिमांड 15,000 मेगावाट के करीब थी, आज वही मिड डे डिमांड 8,000 मेगावाट रह गई है और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक और भी कम होकर सिर्फ 2,000 मेगावाट रह जाएगी। जो डे टाइम आवर्स है उसके अंदर आपकी पावर डिमांड और एनर्जी डिमांड दोनों में कमी आएगी, तो सेल के नंबर रिलेटिवली बढ़ रहे हैं, बट ये सेल्स अब प्रेडोमिनेटली रात के टाइम की हैं। दिन के टाइम की अगर सेल्स को कंप्यूट किया जाए तो आई वुड से कि शायद उसकी हाफ रह गई हो, जो कि एक्चुअली पोटेंशियल था हमारा सेल करने का अगर सोलर वहां नहीं होता। इसका इम्पैक्ट नेशनल ग्रिड पर दो मेन फॉर्म्स में नजर आता है। नंबर 1, नेशनल ग्रिड पर डिमांड शाम के टाइम बहुत तेजी से बढ़ती है और सुबह उतनी ही तेजी से कम होती है। इसको मैनेज करने के लिए पावर जनरेशन प्लांट्स को बहुत तेजी से रैंप अप और रैंप डाउन करना पड़ता है, जो ना आसान है और ना ही कॉस्ट एफिशिएंट है। इस वक्त जो हमारे पास पावर प्लांट लगे हैं उनके जो साइकिलिंग कहते हैं, एक दफा ऑन होना और ऑफ फिर दोबारा ऑन करना, इसकी साइकिलिंग जो अलाउड है दैट इज रफली 30 साइकिल्स एट मोस्ट इन अ ईयर, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि हर रोज ये काम करना है, सो 365 इज द रिक्वायरमेंट एंड वी हैव 30 अवेलेबल। नंबर 2, हुकूमत ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ फिक्स्ड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनके तहत हुकूमत हर साल तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करती है। अब क्योंकि नेशनल ग्रिड्स की टोटल सेल्स 125 टेरावाट आवर से गिरकर 111 टेरावाट आवर हो गई है, ये 2 ट्रिलियन की फिक्स्ड कॉस्ट 14 टेरावाट आवर कम यूनिट्स पर तकसीम होती है। इससे बिजली की पर यूनिट कॉस्ट महंगी होती है और सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। आप ये समझे कि अगर आपके पास 10 कंज्यूमर्स हैं और 10 के 10 ग्रिड के ऊपर मौजूद है, सो 10 कंज्यूमर की एक फिक्स कॉस्ट है, सो अगर 10 के 10 कंज्यूमर ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं, सो वो 10 उसको पे ऑफ कर रहे होंगे। लेकिन लेट्स से आपके 5 कंज्यूमर्स अगर सोलराइज करके निकल जाते हैं, सो वो सारा जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी पेमेंट का वॉल्यूम तो नहीं बदला, तो फिक्स चार्ज भी वहीं पे खड़ा है, सो वो बाकी 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। इसका सोल्यूशन कहने को तो बहुत सिंपल है। इस डक कर्व को फ्लैटन किया जाए, यानी दिन की नेशनल ग्रिड डिमांड बढ़ाई जाए और रात की ग्रिड डिमांड कम की जाए। दिन की डिमांड बढ़ाने के लिए हुकूमत ने इंडस्ट्रियल टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनका मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल डिमांड को वापस नेशनल ग्रिड पर लाया जाए। नंबर 1 ये है कि आप अपना टैरिफ कम कर लें और इंडस्ट्रियल पैकेज इस तरीके से दे दें कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इनकरेज, वो जो सोलर पे शिफ्ट हो रही है वो इनकरेज हो अपनी कंजम्पशन को ग्रिड के थ्रू पूरा करने के लिए। तो उसमें एक तो ये किया कि गवर्नमेंट ने सरप्लस पैकेज लॉन्च किया। सरप्लस पैकेज ये था कि जो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी जो इवेंचुअली आपकी प्रीवियस ईयर्स की जो कंजम्पशन है, अगर उससे ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो फिर आप इवेंचुअली आपको 23 रुपए फी यूनिट पड़ेगा। हुकूमत के सरप्लस पावर पैकेज ने दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 के दरमियान इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर से 2164 गीगावाट आवर की डिमांड ग्रिड पर वापस पहुंचाई है। लेकिन आज जब ग्रिड पावर दोबारा इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव हो रही है, इंडस्ट्रीज के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि ग्रिड सस्ती है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ग्रिड रिलायबल भी है। वोल्टेज सैग्स, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस और वेक्टर शिफ्ट्स जैसे ग्रिड क्वालिटी इश्यूज फैक्ट्रीज के लिए डाउन टाइम, इक्विपमेंट रिस्क और प्रोडक्शन लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए रियॉन एनर्जी ने रिफ्लेक्स विद ग्रिड कंडीशनिंग डिजाइन किया है। रिफ्लेक्स एक ऐसा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो अनरिलायबल ग्रिड सप्लाई को इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करता है और सोलर, विंड और जेनसेट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। इसका मतलब है
क्लीनर ग्रिड पावर, अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, जनरेटर डिपेंडेंसी में रिडक्शन और पे बैक इन अंडर 12 मंथ्स। तो अगर आप भी इंडस्ट्रियल साइट के लिए ग्रिड को सेफली और इंटेलिजेंटली अनलॉक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक पर क्लिक करें या pakistanandcounting.com/Reon Energy पर जाएं और Reon टीम से फ्री साइट इवैल्यूएशन करवाएं। थैंक यू टू Reon Energy फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। नेशनल ग्रिड में रात की डिमांड कम करने के लिए बैटरी अडॉप्शन इनकरेज की गई है ताकि सोलर की जनरेट की हुई एक्सेस एनर्जी शाम के टाइम लोकली ही इस्तेमाल कर ली जाए। टैरिफ्स, व्हीलिंग रिफॉर्म्स, लोड मैनेजमेंट एंड लोड शेडिंग, सबका सेंट्रल पर्पस यही है कि दिन के टाइम नेशनल ग्रिड पर डिमांड वापस लाई जाए और रात के टाइम डिमांड को कम किया जाए। एंड लास्टली, नेशनल ग्रिड और सोलर के दरमियान जो टेंशन है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। क्या सोलर अडॉप्शन स्लो करनी पड़ेगी या फिर कोई और सोल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ेगा? तो आप आगे अगर हमने फ्यूचर में, जाहिर है सोलर ने तो बढ़ना ही है, तो सोलर को साथ लेके चलना होगा। तो ग्रिड को जो है ना अपने साथ उसको इंटीग्रेट करना है और थोड़ा सा जो है ना ग्रिड का रोल भी अब चेंज होने की ज़रूरत है। सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर की बजाय उसको इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर की तरफ जाना होगा। तो जितना ज़्यादा हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे उतना बेहतर होगा कि हम जो है वो मैक्सिमम रिन्यूएबल को जो है वो इंटीग्रेट कर सकेंगे सिस्टम में। के ख्याल में पाकिस्तान के पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? Let us know in the comments and thank you for watching Pakistan and Counting.